we discussed what are the dependent variables in psychophysical experiments. The dependent variables are the judgments of absolute or difference between stimuli or the absolute detection of a stimulus. Those are some of the dependent variables, and those are the judgments that we want to see. So these dependent variables are interest of our study. But what are the independent variables? The major independent variables manipulated in psychophysical studies and experiments are the magnitude and the quality of stimuli. ठीक है, आप चेंज करते हैं इंटेंसिटी को, आवाज को लाउडर कर देते हैं. इंटेंसिटी is the physical correlate of loudness of a tone. So the physical correlate of loudness of a tone would be a manipulation of stimulus magnitude. So sound का magnitude क्या है, उसके हिसाब से आपका psychological जो dependent variable है कि आप कितनी loudness experience करते हैं. So independent is the magnitude of the physical stimulus and dependent is the psychological experience of loudness. इसी तरह किसी सब्जेक्ट का वेट किसी ऑब्जेक्ट का अगर आप जो है वो वेरी करते हैं, या किसी लिक्विड में कोई ख़ास खुशबू ऑर्डर आप डालते हैं और उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 1 ड्रॉप है, 4 ड्रॉप हैं, 1 चमचा है, पानी में चीनी का 1 दाना है या 10 दाने हैं या 20 दाने हैं. So those are the magnitude of stimuli, and what they experience as sweetness or loudness or heaviness are the dependent variables. So independent variables are always magnitude of the stimuli, the physical stimuli. अब जो frequency है वो physical correlate है pitch का. Pitch is a psychological experience of how we experience a sound. Frequency किसी tone की जो है उसको manipulate करेंगे to produce a qualitative change in the stimulus. Other qualitative judgments could require that observer compare different foods like spinach versus turnips. शलजम और साग के टेस्ट को वो कंपेयर कर रहे हैं, तो उसमें आप किसी में वो बढ़ाते जाएंगे एक चीज़ का टेस्ट और कहाँ पे वो उसको डिटेक्ट करते हैं, या दोनों के टेस्ट में वो किसी एक चीज़ पे कि दोनों में से सॉल्टी क्या है या दोनों में से कड़वे कौन से ज़्यादा हैं, वॉट एवर जजमेंट यू रिक्वायर, आप फिजिकल जो उसकी प्रॉपर्टी है फूड की उसको करेंगे. और अगर पिच का एक्सपीरियंस है तो उसके लिए आप फ्रीक्वेंसी को मैनिपुलेट करेंगे. नाउ आप किसी को कहते हैं कि इन 2 आवाज़ों में क्या फ़र्क है. यूजुअली इन आवर टेक्स्ट बुक्स उन्होंने कोई अमेरिकन सिंगर्स की मिसाल दी हुई होती है. आई हैव ब्रॉट इन आवर ओन एग्जाम्पल. So those who have listened to these 2 great singers in this generation would know that Reshman has a different pitch from Nayyera Noor. Lambi judai. That's how you hear Reshman. But Aaj bazaar mein paab jo na chalo. That's Nayyera Noor. So you see this difference, you always recognize it is because of the frequency in the sound, but you experience it as pitch. There is no way you can change how these 2 voices sound in pitch by increasing or decreasing the volume. It's a quality of that sound. So this is just one example of a very interesting phenomena which is called pitch, and all the music sense and hearing things is related to this experience of pitch. स्टिमुलस बाहर भी होता है और आपके अंदर भी होता है. आपको अंदर से भी जैसे पेन का है या बॉडी की सेंसेशंस फील होती हैं. एक स्टिमुलस होता है जिसको एनवायरनमेंट में मौजूद होता है, और कुछ स्टिमुलाई होते हैं जिन्हें आप अटेंड करते हैं. सो एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, अटेंडेड स्टिमुलाई, स्टिमुलस आउटसाइड, स्टिमुलस इनसाइड. जितनी इन्वायरमेंट में चीज़ें हैं वो इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई है, और जो अटेंडेड स्टिमुलाई है वो मोमेंट टू मोमेंट चेंज होता है. अभी मैं वो आवाज़ सुन रही हूँ, फिर मैं
कोई और आवाज़ सुनूंगी, अभी मैं उस चीज़ को देख रही हूँ, फिर किसी और चीज़ को, वो है जिसको हम अटेंड कर रहे हैं. A sensory threshold can be defined generally as a stimulus intensity that produces a response in half of the trials. 10 दफ़ा पूछा है तो 5 दफ़ा उसने बताया हो आपको कि हाँ मैं सुन रहा हूँ. Is the level of strength a stimulus must reach to be detected. नर्वस सिस्टम को बाहर से इनपुट मिलता है अपनी सेंसेस के जरिए, कान, आंखें, जबान, टेस्ट, नोज, स्किन. वो इस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्म करता है आपके साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस में. ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है सेंसरी थ्रेशोल्ड साइकोफिजिक्स में. जो इस थ्रेशोल्ड से नीचे कोई स्टिमुलस है, हल्की आवाज़ है या हल्की लाइट है या हल्का टेस्ट है, तो वो आपको नहीं महसूस होगा. इसीलिए हम इसको वो दहलीज कहते हैं जिसके ज़रिए हम थ्रेशोल्ड क्रॉस करके सेंसेशन को डिटेक्ट करते हैं. इसकी डेफिनेशन है एएल की, the lowest level at which a stimulus can be detected. Recognition threshold ये होता है the level at which a stimulus cannot only be detected but also recognized कि ये आवाज़ है किस चीज़ की, ये टेस्ट है किस चीज़ का. डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड ये होता है जिसमें एक इंक्रीज मैग्नीट्यूड ऑफ स्टिमुलाई की जो है वो आप परसीव कर सकते हैं और 50% ऑफ द टाइम परसीव कर लेते हैं. अगर 100% टाइम नहीं कर रहे तो आपने 10 ट्रायल दिए, 5 दफ़ा उसने कहा है कि ये वाली जो है अब उससे हैवी हो गई है या ऊंची हो गई है, ब्राइट हो गई है. टर्मिनल थ्रेशोल्ड ये होता है एक ऐसा लेवल या एक ऐसा बैरियर जिसके बाद हम स्टिमुलस को डिटेक्ट कर ही नहीं सकते. तो ये था थ्रेशोल्ड्स का कॉन्सेप्ट और उनकी वेरियस डायमेंशन.